قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حاضرین عقیدت سے محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ پڑھے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، میرے پیارے سامعین، جلسے کا حسین منظر اپنے ماتھے کی نگاہ سے سر شام سے لے کر اب تک ملاحظہ اور نظارہ کرنے کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان بھائی مستقیم بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت اناؤنسری سے آپ کی سماعت تک پہنچ رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر ایک مختصر مگر جامع تقریر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی ہو چکی ہے۔ علاقے کے تمام شعراء الحمدللہ بھائی اپ مکھیا نظام نے اکٹھا کر دیا ہے علاقے کے، لیکن ہندوستان کے اس وقت پورے گوشے اور حصے میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک بہت اچھی آواز کے مالک، بہت ہی خوبصورت لہجہ جو ہم اور آپ کے گھر کا ہے، جس سے دنیا ابرار انجم کے نام سے پہچانتی ہے، وہ تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ میری تقریر کے بعد یہ پڑھیں گے اور آپ ان کو سنیں گے۔ یہ دیکھیے رستم کمالی صاحب ایک رستم بھی ہے اور تخلص بھی کمالی رکھے ہیں۔ یہ دونوں جانب سے بلند ہی بلند ہے، اور اشہر جمالی کو بھی آپ کو سننے کا شرف حاصل کیا، غلام غوث، یہ تمام تر علماء کرام موجود ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بعد ایک تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ جو آپ کی طبیعت کے ہیں، وقت شناس آدمی ہے، کلم الناس علی عقولہم کے تحت کلام کرتے ہیں، وہ خطیب حضرت مولانا جہانگیر ساویسی اور شاعر ہندوستان جمیل اختر جمشید پوری، یہ تمام لوگ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ حاضر آیا ہوں، کیا آپ سے کچھ میں باتیں کر سکتا ہوں کیا؟ بولیے بھائی۔ چلیے، بڑی اچھی نسبت بھائی نظام نے اپنے ابا حضور کی جلسہ چہلم کے موقع پر قائم کی ہے، وہ ہے یاد حسین۔ آپ بھی دعا کریں، ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حسین کی محبت میں ان کے والد کی نجات ہو۔ بڑی اچھی نسبت، بڑی نسبت قائم کر دی انہوں نے۔ اپنے والد کے چہلم کے موقع پر حسین پاک کی نسبت کو حاصل کیا گیا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ نسبت ہی، یہ مجمع جو بیٹھا ہے سن رہا ہے کھایا ہے، یہ علماء جو آئے ہیں پڑھے ہیں سنا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا ثواب تو الگ، اور انہوں نے جو ایک نسبت قائم کی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اسی نسبت کے صدقے میں ان کے والد کی مغفرت فرما دے۔ کیونکہ اور ایک بات یہ ہے کہ ماں غلام غوث صاحب اس وقت علاقے میں شیر فہمی تک بندی کا بڑا ماحول ہے، تو ہم لوگ تو شیر پڑھتے نہیں ہیں، مگر چونکہ اتنا اچھا ماحول بن گیا ہے شیر سننے پڑھنے کا کہ کبھی کبھار ہم لوگوں کو بھی پڑھنے کا من کرتا ہے۔ تو ہمارے آواز تو ابرار انجم اور رستم کمالی اشہر جمالی کی طرح نہیں ہے، اپنا آدمی بوڑھا آدمی کا انداز بوڑھے کی طرح ہے۔ میں بھی ایک شیر پڑھتا ہوں، بوڑھا شیر، دیکھیے چاہے تحت ہی پڑھیں گے، ترنم کی شکتی نہیں ہم لوگوں میں۔ ایک شیر پڑھتا ہوں، دیکھیں، امین بن امین مان لو،
अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। खुद मुईनुद्दीन ने कहा, अरे हुसैन ही को दीन मान लो। खुद मुईनुद्दीन ने कहा कि हुसैन ही को दीन मान लो। तज़किरे हुसैन में थोड़ी देर बैठ, मैं चाहता हूं कि बगैर मर्सिया खाने के, बगैर किसी तमहीद के, जल्दी में कुछ बातें आप तक पहुंचा देता। गाजी अब्बास आलम बरदार नाम सुने हैं? ये हुसैन पाक के भाई, अपना सगा भाई नहीं, उसको कह लीजिए कि सौतेला भाई, क्योंकि शहरबानो जो हुसैन पाक की बीवी है, उससे हजरत हसन और हुसैन है। हजरत अली की कई बीवियां थी, गालिबन उम्मे बनीन नाम था उनका, उन्हीं से हजरत गाजी अब्बास अलम पर। तो हुसैन बड़े हैं और अब्बास उम्र में छोटे थे, तो उम्र छोटा भाई अपने बड़े को भैया कहकर, भैया किधर जा रहे हैं भैया, भाई किधर जा रहे हैं भाई। तो हजरत अब्बास हुसैन को हमेशा यही कहते, भैया कहाँ जा रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, भैया क्या खा रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं। एक दिन अब्बास की माँ ने अपने बेटे को भैया कहते हुए सुना। कहा, बेटा अब्बास, हुसैन को भैया ना कहो। कहा, माँ ये मेरे भैया है, भैया ना कहे तो क्या कहे। पूरी दुनिया के लोग अपने बड़े भाई को भैया बोलते हैं, मैं भैया ना कहूं तो क्या कहूं। कहा, भैया ना कहो, हुसैन को आका कहो। सुभान अल्लाह, हुसैन को आका कहो। तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, माँ ये मेरे भाई हैं, मेरे वालिद का बेटा है, ये मेरे भैया मोहतरम है, हम भैया ही कहेंगे, आका क्यों कहेंगे इनको, आका क्यों कहेंगे। ये भी अली का बेटा है, मैं भी अली का बेटा हूँ, ये भी अली के आंगन में रहता है, मैं भी अली के आंगन में रहता हूँ, ये भी अली के घराने से मुताल्लिक है, मैं भी अली के घर से ताल्लुक रखता हूँ। खानदान एक, वालिद एक, घर मकान एक, पूरी दुनिया भैया बोले, मैं भैया बोलूं तो क्या हक है। माँ मैं इनको भैया ही बोलूंगा। गाजी अब्बास अलम बरदार की माँ कहती है, बेटा अरे एक कहाँ हो, एक कहाँ हो। अरे हुसैन के नाना मुस्तफा जाने रहमत है, तुम्हारे नाना मुस्तफा जाने रहमत नहीं है। हुसैन की माँ खातूने जन्नत है, तुम्हारी माँ खातूने जन्नत नहीं है। इस निस्बत से बेटा पूरी दुनिया भैया कहता है तो कहे, रसूल की निस्बत से और फातिमा की निस्बत से हुसैन को तुम्हें भैया नहीं कहना है बल्कि आका कहना है, आका कहके पुकार। हुसैन का मकाम ही बहुत ऊंचा है, बयान किया जाता है। देखिए मकाम, देखिए थोड़ी देर में मकाम। सरकार कायनात तशरीफ फरमाए, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, जानिसार बुजुर्ग हैं, अकीदत रखने वाले लोग हैं, और कभी कभार बड़ों में छोटे लोग भी आ जाते हैं। मिलाद में तो आते ही हैं, कभी आम बैठक में भी बड़े छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, चंद बच्चे भी बैठे हैं। एक साहबी रसूल उठ खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये देखिए इस बच्चे की एक शिकायत है, इस बच्चे की, तुम्हारी नहीं, घबराना मत। मजमा में जो बच्चा बैठा था उस बच्चे के जाने में इशारा फरमा कर साहबी रसूल फरमाते, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की एक शिकायत है, इस बच्चे की एक शिकायत है। सरकार फरमाते, क्या शिकायत है, बोलो। दरे रसूल में हो, बारगाहे रसूल में हो,
اگر یہ بچہ بچپنا کی وجہ سے کوئی غلطی کر گیا ہوگا، اگر تم اس سے شکایت سمجھ رہے ہو تو بولو ذرا، دیکھیں شکایت کون سی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو صحابی رسول عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، شکایت یہ ہے کہ یہ بچہ جب آپ کے نواسے حسین کے ساتھ چلتا ہے، بولے یا رسول اللہ، شکایت یہ ہے کہ یہ بچہ جب آپ کے نواسے حسین کے ساتھ چلتا ہے تو ان کے قدموں کے نیچے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھ لیتا ہے، اپنے ماتھے پہ رکھ لیتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے کبھی ماتھے پہ رکھتا ہے، کبھی پیشانی پہ ملتا ہے، کبھی اس سے بوسہ دیتا ہے۔ صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ بچہ شرارت کرتا ہے، حسین چلتے ہیں تو یہ تنگ کرتا ہے، ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا ہے، ماتھے پہ رکھتا ہے۔ نبی یہ کون ہے؟ مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں، اٹھ جا میرے بیٹے، ذرا تو کھڑا ہو جا۔ وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے کہ سچ بتاؤ بابو، کیا یہ آدمی جو شکایت کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ سچ ہے، یا رسول اللہ سچ ہے۔ کہا میں آپ کے نواسے کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھتا ہوں، یہ سچ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا تم اسے کیوں رکھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو حسین سے پیار ہے، اور میں ان کے قدموں تلے مٹی اٹھا کر ماتھے پہ اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے تیرے حسین سے عشق ہو گیا، عشق ہو گیا ہے۔ اگر آپ پیار اور عشق میں فرق نہیں جانتے ہو تو تھوڑا جان لیجیے۔ پیار کہتے ہیں کسی کو مان لینے کو، کسی کی چاہت کو پیار کہا جاتا ہے، کسی کو دل دینے کو پیار کہا جاتا ہے۔ میں مزید تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے پیار اور محبت کہا جاتا ہے۔ اور اسی پیار اور محبت میں شدت ہو جائے، بلندی آ جائے، یہ پیار اگر سرفرازی حاصل کر لے تو علماء فرماتے ہیں اہل ادب کی نظر میں کہا جاتا ہے کہ اسے عشق کہا جاتا ہے۔ وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے نواسے سے اس مجمع کو پیار ہے، مگر آپ کے نواسے سے مجھ کو عشق ہو گیا ہے، اس لیے میں ان کے نیچے قدموں کے نیچے دھول اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھتا ہوں، آپ کی نسبت سے یہ جان کر کہ یہ میرے رسول کا نواسا ہے، ان کے قدموں کے نیچے کے دھول ماتھے پہ رکھ لوں گا تو اللہ نبی کے نسبت سے مجھے سرفرازی عطا فرما دے گا، مجھے بلندی عطا فرما دے گا، میرے مقام کو اونچا کر دے گا۔ یا رسول اللہ، اسی نسبت سے میں حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر ماتھے پہ رکھتا ہوں تاکہ مجھے بلندی مل جائے۔ اب آئیے تھوڑا سا تاریخی دنیا میں سفر کیجئے۔ یہ بچہ کون ہے؟ حسین سے پیار کرنے والا بچہ کون؟ حسین کے قدموں تلے مٹی اٹھا کر ماتھے کا تاج بنانے والا یہ نورانی بچہ کون ہے؟ تو دنیا اس بچے کو حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتی ہے، اور یہی حبیب ابن مظاہر ہے جو میدان کربلا کا سب سے پہلا شہید ہے، سب سے پہلا شہید۔ جب یزید کا خط آیا مکہ، حسین خط کو پڑھتے ہیں، مدینہ آیا، مدینے میں خط کو پڑھتے ہیں، یہ جان کر مدینہ میرے حسین چھوڑتے ہیں کہ حسین یزید کا خط آیا ہے، ہو سکے یزید اس مدینے میں لڑائی کرے، قتل و قتال کرے، جدال کرے، مدینے میں تلواریں چلے، خون بہے، میری وجہ سے میرے نانا کے شہر کی بے حرمتی ہو جائے گی، یہ سوچ کر حسین مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں حبیب ابن مظاہر کو خبر ہوئی کہ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں۔ مورخین بیان فرماتے ہیں ابھی حسین مکہ نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے حسین کا یار حبیب ابن مظاہر مکہ پہنچ گیا تھا۔
बताना यह है लोगों सफर हुआ, हुसैन के साथ मैदान करबला गए। जाने के बाद मैदान करबला में जल्दीबाजी में सरसरी तौर पे खास बातें, मदीना से मक्का, मक्का से करबला, हुसैन करबला गए। 7वीं मुहर्रम के बाद 8वीं के दिन बिताने के बाद 9वीं की शब गुजर जाने के बाद हजरत हुसैन अपने बेटे अली अकबर से फरमाते हैं, बेटा अली अकबर जाओ बेटा, वो दिन करीब आ गया है जिस दिन में हम लोगों को खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करती है। बेटा अली अकबर मैदान पे जाओ, मैदान के खल्दो खाल को देखो, मैदान के नशीबो फराज को देखो, मैदान के जाविये को देखो, मैदान की उसत को देखो, मैदान की सतह को देखो, मैदान को देखो, जमीन को देखो। बेटा ये जमीन कैसी है, जरा इसे मुलाहिजा फरमा करके आओ। हजरत अली अकबर हुसैन पाक का बेटा जब मैदान करबला में आता है, अपनी औकाबी नजरों से आपके हुक्म के मुताबिक मैदान करबला को मुलाहिजा कर रहे थे, हर कोने को देख रहे थे, हर जगह को देख रहे थे। आपके हुक्म के मुताबिक मैदान जंग जो होने वाला था, जो मैदान, उस मैदान को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसी बीच में अली अकबर हुसैन पाक का बेटा अली अकबर देखते क्या है कि मैदान के बीचों बीच में एक निकाब पोश औरत है और मैदान में पड़ी हुई है और अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही है। और साफ ही नहीं कर रही है बल्कि उनके मुंह से रोने की आवाज आ रही है। वो खातून पिछिया ले लेकर के रो रही थी, अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही थी। अली अकबर देख रहे थे, मुलाहिजा फरमा रहे थे, सोच रहे कि या अल्लाह ये कौन है, अब्बा ने मुझे मैदान करबला में मैदान देखने के लिए भेजा है, ये खातून कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यजीद ने रिपोर्ट किया हो, यजीद ने मुकर्रर किया हो कि जाओ मेरे सिपाही गिरने वाले हैं, जाकर के मैदान साफ कर दो। मगर हजरत अली अकबर जब उस खातून के करीब जाते हैं तो उनकी कैफियत को देखने के बाद अली अकबर जान गए कि ये खातून यजीद की जानिब से नहीं, लगता है इस खातून को किसी और ने भेजा है और मेरी मदद के लिए भेजा है। अली अकबर फरमाते हैं, ये खातून आप कौन है? मैदान करबला को साफ कर रहे हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों तवज्जो चाहता हूँ, मैदान करबला को साफ कर रहे हैं। खातून अर्ज करती है, बेटा अहवाल ना पूछो, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ करने दिया जाए, मेरे ताल्लुक से तू सवाल ना करो। आखिर अली अकबर बजिद हो जाते हैं, बेबजिद हो जाते हैं और ये फरमाते हैं, ए खातून अगर आप मेरे लिए मैदान करबला को साफ कर रहे हैं और आज अगर आपका चेहरा हम देखेंगे नहीं और बगैर देखे आप चले गए तो कल मैदान माशर में पहचानेंगे नहीं, और जब पहचानेंगे नहीं तो आज जो आप मेरे पर एहसान कर रहे थे ये एहसान का बदला नहीं दे पाएंगे। ए खातून इसलिए आपको अपना चेहरा दिखा कर जाना होगा। अली अकबर जब बजिद होते हैं तो मैदान करबला को अपने आंचल से साफ करने वाली खातून ने अपने चेहरे से निकाब को उल्टा है। उलटने के बाद अली अकबर देखते क्या है कि ये खातून कोई गैर नहीं है, ये मेरी दादी जान हजरत फातिमा है, मेरे अब्बा हुजूर हुसैन की माँ है, हजरत फातिमा है। जैसे ही अली अकबर ने अपने दादी जान को देखा है, अली अकबर के आंख से भी आंसू के कतरे गिरने लगे। दोनों दादी और पोते दोनों मिलकर रोने लगे। अहवाल से दोनों वाकिफ थे, हजरत अली अकबर भी जान रहे थे और हजरत फातिमा तो पहले से जान रही थी, मेरे बेटे इसी मैदान में शहीद होंगे, यही पे मेरे बेटे को कत्ल किया जाएगा, यही धरती पर मेरा बेटा अली अकबर गिरेगा, इसी धरती पे मेरा हुसैन तड़पेगा। हजरत फातिमा जान रही थी और इन बातों को याद कर करके हजरत फातिमा अलग रो रही थी, अली अकबर भी रो रहे थे। आए तड़प करके कहा, बेटा देखा मैदान करबला को, मैदान करबला को मुलाहिजा किया। जैसे ही हुसैन ने अली अकबर से इतना पूछा है, अली अकबर के आंख से आंसू के कतरे गिरते हैं। कहा, अब्बा हुजूर मैदान करबला तो देखा, हर नक्शे को
को देखा, हर जगह को देखा, मुलाजा फरमाया, सब कुछ देख करके आया, मगर हुजूर मैंने एक और तमाशा देखा, एक और किस्सा वहां देखा। कहा क्या देखा बेटा? कहा एक खातून थी जो अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही थी, और एक हुजूर वो कोई कह रही थी, आपकी माँ फातिमा थी, मेरी दादी जान फातिमा थी, वो साफ कर रही थी। हुसैन फरमाते हैं हाँ बेटा, वो मेरी माँ थी जो साफ कर रही थी, और इसलिए साफ कर रही थी कि मेरी माँ ये जान रही थी बेटे का दिल रखने के लिए। हुसैन फरमाते हैं मेरी माँ ये जान रही थी कि मेरा पोता अली अकबर इसी मैदान पे गिरेगा, मेरा पोता अली अकबर इसी मैदान पर के आएगा। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, आपके जहन में एक बात मैं दे देना चाहता हूँ। आप कहोगे मौलाना लंदरानी गुफ्तगू करते हैं, कहा फातिमा कभी इंतकाल की थी, मदीने में दफन हुई थी, मैदान करबला बहुत दिनों के बाद वाक़या हुआ था। एक मरा हुआ इंसान माज़अल्लाह, एक इंतकाल फरमाया हुआ इंसान कैसे कहीं चल करके जा सकता है, मैदान करबला में कैसे जा सकती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अरे ये तो माजी बईद की बात है, आओ मैं माजी करीब में ले जाना चाहता हूँ। मखदूम बिहारी की बारगाह में, शायद क्या आप लोग गए होंगे, इसी बिहार शरीफ की बात है। मखदूम बिहारी, एक मखदूम बिहारी जिनका नाम यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह है, उनके बारे में कहा जाता है कि यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल फरमा गए, इंतकाल फरमाने के बाद जब उनके चाहने वालों ने उससे दफना दिया, कब्र में मिट्टी को डाल दी गई, तो कब्र में मिट्टी डालने के बाद अचानक यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ कब्र से बाहर हो गया। सुभान अल्लाह। मुरीदों ने पकड़ा, फिर अंदर कर दिया, फिर मिट्टी लगा दी, फिर बाहर हो गया। कई बार ऐसा किया गया, मगर बार बार यहिया मुनीरी का हाथ कब्र से बाहर आ गया। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपना कर गया। जिंदा हो जाते हैं जो, मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हाथ निकल गया। थोड़े लोग मखदूम सिमना की बारगाह में गए, छोटा शरीफ मखदूम सिमना की बारगाह में गए, क्या गजब हो गया? क्या हुआ? काफिर मुर्शिद का इंतकाल हो गया है, दफनाए, मिट्टी डाले, कब्र पे लेटाए, मिट्टी डाले, और मिट्टी डाल करके हम लोग जैसे हटे हाथ बाहर आ गया, फिर हम लोग अंदर में फिर बाहर आ गया। तो मखदूम सिमना मुराकबे में गए, मुराकबे में गए, कुछ लम्हे के बाद अपनी नजर को उठाते गए, सुनो यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह तुम लोगों के पीरो मुर्शिद इंतकाल से पहले वसीयत किए थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ मेरी टोपी को कब्र पे रख देना। शायद कि तुम लोग टोपी रखना भूल गए हो, टोपी रखना भूल गए हो, यही वजह है कि बार बार हाथ निकाल कर तुमसे टोपी मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुरीद थोड़े के जाकर याद आया, कहा कहे थे कब गए, तोड़ के गए, टोपी लाए। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं हाथ यूं निकला हुआ था, देखिएगा यूं निकला हुआ था, मुरीद टोपी लेकर के टच कर दिया, ऐसे टच हुआ यहिया मुनीरी के हाथ में। एहसास की बुनियाद पर यहिया मुनीरी जान गए कि मेरे हाथ में मेरी टोपी आ गई। मुट्ठी किसी ने बंद नहीं किया है, अपने से यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुट्ठी को बंद कर देते, बंद करके पकड़ लेते हैं। इस बार किसी ने उनके हाथ को अंदर नहीं किया और अपने ही से अपने हाथ को कब्र के अंदर कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब फातिमा के गुलामों का ये आलम है तो रसूल की बेटी फातिमा का आलम क्या होगा? हुसैन के गुलामों का जब ये आलम है तो हुसैन का मकाम क्या होगा? इसलिए इस मुकाबले में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो लोग पढ़ते हैं पढ़े, आप सुन्नी मुसलमान हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बिल यकीन फातिमा मदीना से कब्र अनवर से निकल करके करबला गई थी, और जाने के बाद करबला जाने के बाद अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही थी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस यही बात किए के बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। हबीब इब्ने मुजाहिद मैदान ये मदीना से मक्का से करबला तक गए, उस वक्त उनकी उम्र 76 साल की थी। कितने साल की? 76 साल। चूंकि मैदान करबला में तोलुए सूरज
बाद ही जंग का आगाज हो गया, नक्कारे ठोक दिए गए। मैं भी नक्कारे की तरफ नहीं जा रहा हूं, नक्कारे बज गए, जंग की तैयारी करो। तो हुसैन पाक अपने मजमा में देखने लगे, नजर दौड़ा ले किसको भेजे। पहले की जंग एक बार की नहीं, एक तेरे तरफ से एक मेरे तरफ से, एक तेरे, जंग का उसूल था। उस जमाने में जंग का यही उसूल था, एक तेरा आए एक मेरा जाए। तो हुसैन पाक की नजर ये इंतखाब कर रही थी कि जवान को भेजूं, किनको आगे भेजूं मैदान करबला में। तो हुसैन जो नजर दौड़ा रहे थे मजमा में, इस हुसैन के दौड़ाते हुए नजर को हबीब इब्न मुजाहिर समझ गए, उठे और आके पैरों में गिर गए। कहा हुसैन आपकी नजर इस मजमा में चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी का इंतखाब फरमाना चाह रहे हैं, आप मैदान करबला में किसी को भेजना चाह रहे हैं। कहा हुसैन मैं जान रहा हूं कि आप किसी जवान को चुन रहे हैं। आज मैदान करबला में पहले कोई जवान नहीं जाएगा, आपका ये पुराना यार, आपका ये आशिक 76 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मुजाहिर जाएगा, हबीब इब्ने मुजाहिर जाएगा। हुसैन पाक की बारगाह में आकर जब हुसैन के पैरों को पकड़कर हबीब इब्ने मुजाहिर मचलने लगे, या हुसैन पूरी जिंदगी मैंने आपकी यारी में गुजारा है, जहां आपने पुकारा है मैं हाजिर आया हूँ। हर वक्त या हुसैन का नारा मेरी जुबान पे लगा रहा है, हर वक्त मैं आपके नाम की तस्बीह पढ़ता रहा। या हुसैन के बना आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, खबरदार खबरदार मुझसे पहले आप किसी को मैदान कारदार में ना भेजे। हजरत हुसैन हबीब इब्ने मुजाहिर को भेजते हैं। नौजवानों आपके जज्बे को, मैं आपके जज्बे तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। 75-76 साल का वो बूढ़ा हबीब इब्ने मुजाहिर हुसैन पाक के आदेश को लेकर के मैदान करबला में जाते हैं। हुसैन अपने हाथों से तलवार पकड़ाते हैं और मैदान करबला में भेजते हैं। अपनी नजरों से उससे देख रहे हैं, नजर नवाजी अल्लाह फरमा रहे हैं, नजरों से उससे बरकत अता कर रहे हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर जब मैदान करबला में गए और 76 साल बूढ़े की उम्र पाकर जब हबीब इब्ने मुजाहिर ने मैदान करबला में तलवार को चलाना शुरू किया, तो इतना चलाया, इतनी तेजी से चलाया कि उस 76 साल के बूढ़े ने 41 यजीदियों को अपनी जगह पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, 41 यजीदी फौजियों को मारे, जवान की तरह तलवार चला रहे थे। एक जवान से भी ज्यादा तेज उनकी तलवार चल रही थी। आप कहोगे बूढ़े में ये ताकत कहां से आ गई, इनके हाथों में ये कुव्वत कहां से आ गई, ये बूढ़े में ये तुतराकी माहौल कैसे पैदा हुआ, ये बूढ़े में ये बरकी लहजा कैसे आ गया, इस बूढ़े में ये तवानाई कैसे आ गई, इस बूढ़े में हिम्मत का सूरज ऐसा तुलू कैसे हो गया। आप सोचेंगे आखिर कैसे हो गया। तो मेरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, ये बूढ़े की ताकत नहीं थी, ये बूढ़े के हाथ की ताकत नहीं थी, ये बूढ़े के बाजू की ताकत नहीं थी, ये बूढ़े की पैर की ताकत नहीं थी। अरे उस बूढ़े के सीने में हुसैन पाक की मोहब्बत का जो चिराग चल रहा था, उसी चिराग की रोशनी थी। मोहब्बत हुसैन का जो खून दौड़ रहा था, उसी खून की ताकत थी, क्योंकि वो मोहब्बत हुसैन चल रहा था। मोहब्बत हुसैन की वजह से वो तलवारें चलाता रहा और एक बूढ़ा जवानी की तरह लोगों को कत्ल करता रहा। आप भी हुसैन से मोहब्बत करो, आप में भी तवानाई आ जाएगी। आपसे भी आप भी हुसैन से मोहब्बत करो, आप में भी जिंदगी आ जाएगी। आप भी हुसैन से मोहब्बत करो, आप में भी सरफराजी आ जाएगी। आप भी हुसैन से मोहब्बत करो, आप में भी बुलंदी आ जाएगी। क्या अब्दुल वाहिद का वो शेर नहीं पढ़े, इश्क़ खुदा में इश्क़ नबी में वो हालत ऐसी बदली। आवाज नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। इश्क़ खुदा में इश्क़ नबी में हालत ऐसी बदली, 60 बरस का बूढ़ा दौड़े जैसे कोई बिजली, वापिस आगे ले जवानिया।
तैबा में 60 बरस का बूढ़ा जब मक्के की सरहद पे इसके खुदा इसके नबी में जब मक्के की सरहद पे जब जाते हैं हज के लिए तो बूढ़ा भी इतनी तेजी से दौड़ता के तवाफ करता है, ये उनकी अपनी ताकत नहीं होती, वो बूढ़े की ताकत नहीं होती है, अल्लाह रसूल की ताकत होती है। उसी ताकत की बुनियाद पे वो दौड़ते हैं। बिला तमसील मेरे दोस्तों, आप ये हबीब इब्ने मुजाहिद को मैदान करबला में जो देख रहे थे, ये उनकी अपनी ताकत नहीं थी, हुसैन की मोहब्बत की ताकत थी, हुसैन से प्यार की ताकत थी, हुसैन से इश्क की ताकत थी, हुसैन से बेपनाह प्यार की ताकत थी। आप भी अगर चाहते हैं मेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए तो आखिरी पैगाम देकर आपसे रुखसत हो रहा हो, आप हुसैन पाक का हो जाइए। हुसैन आपको यहाँ भी कामयाब कर देंगे और वहाँ भी कामयाब कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तफसील मुकम्मल ज्यादा देर तक गुफ्तगू करने की इजाजत वक्त नहीं दे रहा है, क्योंकि भी मेरे बाद बहुत सारे शोराए कराम रुस्तम कमाली, अबरार अंजुम, जमशेदपुरी और वहाँ जहांगीर और नकीब आजम हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत अनाउंसिंग कर रहे हैं, बहुत नए नए और चुनिंदा अशार से आपको नवाज रहे हैं। इनका भी वक्त चाहिए था।